afternoon, everyone, and a warm welcome to today's webinar on finance and investment for young minds. At first, I want to introduce myself with all of you. Myself, Tania Chakraborty from Avalon Institute, Dum. An institute which provides diploma courses in aviation, hospitality, tourism management, and luxury retail management. And beside this, we also provide 3 years of BBA program in aviation. We are collaborated with also British Learning, and we will provide UK-based certificates to our students on personality development and communication skills. Through this webinar, we can easily discover how to plan our finances, build smart saving habits, and explore beginner-friendly investment tools to grow our wealth confidently. This webinar is being organized by Take Home Solutions in association with United Maritime Association and Lions Club of Kolkata Metro City, and last but not the least, Avalon Academy, Dum. It is my honor to introduce today's speaker, Mr. C.A. Ashish Neeraj sir, who is a seasoned chartered accountant and financial management consultant with over 14 years of experience. He is a founding partner at ASN and Company, Delhi, specializing in GST, income tax, and personal finance. He has served as a special auditor for the GST department and audits a wide range of government, non-government, and banking institutions. His expert insights are regularly featured on major news channels like Aaj Tak, News Nation, Bharat Express, and ANI, as well as in leading publications such as the Economic Times, Times of India, India Today, and Dainik Bhaskar. He has also delivered lectures on financial management for organizations, including the Indo Tibetan Border Police and the Income Tax Employees Association. With that, let me now invite our speaker, Mr. C.A. Ashish Neeraj sir, to begin today's session. Sir, the virtual floor is yours. Thank you, sir. Thank you very much, Tanya. Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. At first, I would like to thank you, the all four organizations such as TechHam Solutions, Avalon Academy, Dum, United Maritime Association, and Lions Club of Kolkata. Thank you very much for inviting me as a speaker. Um, and thank you, Pankaj sir, especially that you consulted me and invited me here. Um, as we had discussed, that most of the people are comfortable in Hindi, so I will deliberate my presentation in Hindi. It will be around of 40-45 minutes. If you have any query, then you can put it on in message bar, and after my presentation, if any question which is still remain unanswered, then I will try to answer them in last 10 to 15 minutes. um, Now, I am sharing my screen. Tanya, is my screen visible? Yes, visible, visible. Okay, okay, thank you. Hello, sir. My screen is visible, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay. सो फर्स्ट जो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट राइट, ग्रो ब्राइट।
बेसिकली जो मैंने अपने 15 ईयर्स एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने ये जो सबसे ज़्यादा देखा और समझा है कि इंडिया में लोग लिटरेट तो 100% है ऑलमोस्ट, बट फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे ख्याल से 25% से ज़्यादा लोगों में नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब हो गया कि हमें अपनी फाइनेंस को, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति जब हम पैसा अर्न करते हैं तो हमें उनको खर्च कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, सेविंग कैसे करनी है, सेविंग के सही तरीके क्या हैं, इन सब चीज़ों में कहीं हम पीछे रह जाते हैं। 20% 25% लोग ही उसको अच्छे से कर पाते हैं। बट जैसा कि अ, आज आज का जो दौर है वो अनसर्टेनिटी का दौर है। अभी कुछ 2-4 साल पहले दुनिया ने, हम लोगों ने कोविड, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि वर्ल्ड में एक ऐसी भी चीज आएगी जिससे यूएस जैसी कंट्री भी 6-6 महीने के लिए रुक जाएगी। इंडिया तो दूर की बात है, यानी जिन कंट्रीज को हम ये मानते थे कि यूएस जो हमसे 20 साल 25 साल आगे चल रहा है, वैसी कंट्रियों को भी इस कोविड ने घुटने पे ला दिया। जब पूरा कुछ सब कुछ बंद हो गया तो फिर उस समय में लोगों के पास क्या काम आया? आप, अगर आपने कुछ पैसा सेव किया हुआ था तो वो आपके काम आया। कितने लोगों के जॉब चले गए। तो सेविंग और उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिर्फ सेविंग ही जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। बट इन्वेस्टमेंट भी आपको इस टाइप से करना है कि आपका जब जरूरत हो तो कुछ आप निकाल सकें, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो, मिड टर्म के लिए। अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आपने सारा इन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ प्रॉपर्टी में ही कर दिया, तो अगर कुछ आज आपको अचानक नीड हो गई तो आप किसी चीज के लिए एक दिन में प्रॉपर्टी, 2 दिन में प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको प्लानिंग की जरूरत है। तो अभी अगले 40 मिनट में मैं इसी चीज पे अपना रखूंगा। नॉर्मली जैसा कि उन्होंने तानिया जी ने कहा कि मैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स रेगुलर सब में एज ए स्पीकर, एज ए गेस्ट इनवाइटेड रहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आज तक पे, भारत एक्सप्रेस पे, न्यूज़ नेशन पे। ये जो न्यूज़ नेशन का है, इसमें जब इस बार पिछली बार बजट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर दे रही थी, तो उस समय में मी टैक्सेशन पे के लिए मुझे बुलाया गया था। और एक तरफ देख रहे होंगे आप वेबसाइट में कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर अपना डेलिब्रेशन दे रही थी बजट पे, और उसके साथ साथ मुझे एक विंडो में रख के, एक विंडो में फाइनेंस मिनिस्टर को और एक विंडो में मुझे न्यूज़ नेशन वालों ने रखा था। और जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बता अनाउंसमेंट करती जा रही थी, उसके इम्पैक्ट मुझसे पूछे जा रहे थे। तो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट फोरम्स पे, डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स में, जितने भी इंडिया के टॉप न्यूज़ पेपर्स हैं उसमें मैं एज टैक्स एक्सपर्ट, एज फाइनेंस एक्सपर्ट आता रहता हूँ। न्यूज़ चैनल्स पे आता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो आज बात कर रहे हैं, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी व्यक्ति का सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, आपको अपने जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना होता है, और वेल्थ का बिल्ड कर सकते हैं। कैसे आप अपना बिल्डिंग प्लान करें? जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन असेस कीजिए। हर आदमी का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है। हो सकता है एक्स नाम का के व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा एसेट्स, पेरेंटल एसेट्स ही हो। वाई नाम के व्यक्ति के पास पहले से कुछ ना हो, उसे जो करना है खुद ही करना है। जेड नाम के व्यक्ति के पास कुछ ऐसे हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं बट आज के डेट में नहीं है। तो पहला है कि आपको अपना फाइनेंशियल सिचुएशन एसेस करना है। ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंस। आपको अपना जो भी इनकम है उसको एक्युमुलेट करना है, और एक्सपेंसेस जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं उनको ध्यान देना है। एक चीज मैं सबसे ज्यादा जो जरूरी मानता हूँ कि आप जो भी पैसा डे टू डे में खर्च करते हैं, मंथली आपका एक्सपेंस है, जो जो भी आपके दो दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं हर आदमी के। कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं, अगर मान लीजिए आप रेंट दे रहे हैं, स्कूल का फीस दे रहे हैं, तो ये सब जो फूड का है, आपके यूटिलिटी बिल्स हैं। कुछ आपके एक्सपेंस जो है वो एकदम फिक्स्ड है, जो होंगे ही। और कुछ वेरिएबल हैं कि जो कभी होंगे कभी नहीं होंगे। लेकिन मैं सबसे ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जो भी
उसे आप कहीं अपने व्हाट्सएप पे ही एक अपना पर्सनल चैट बना लीजिए, या कोई एक्सेल सीट यूज किया कीजिए। अगर आप टेक से भी नहीं है तो डायरी यूज किया कीजिए, बट आप लिखा कीजिए कि आपने कहाँ कितने पैसे खर्च किए। अगर आप एक्चुअली क्या होता है कि हम कितना पैसा खर्च कर देते हैं वो हमें नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम उसका ट्रैक नहीं रख रहे हैं। लेकिन अगर हम डेली का अपना खर्चा लिखा करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ओके, हमारा ये पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, और इसको हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंस, कैलकुलेट आप नेटवर्थ, अपना नेटवर्थ देखिए, आपके पास कितने सेविंग्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट हैं, क्या प्रॉपर्टी है, और उसमें माइनस कीजिए कि आपके क्या लोन्स चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो आगे का, उसके लिए तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आज के डेट में हम कहाँ खड़े हैं। तो पहले हमने ट्रैकिंग एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस कर लिया। फिर हम अपना नेटवर्क ट्रैक करते हैं कि ओके, आज के डेट में मेरे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं। सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। हर व्यक्ति के को तीन टाइप के जो है गोल्स बनाने चाहिए। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, सेकेंड है मीडियम टर्म गोल, थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो कि 1 से 3 साल के लिए होता है, जिसे आपको हर आदमी के पास कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो कि आपको एक बनाना है। आपको कहीं घूमने जाना है, कोई शादी है नज़दीक में, जो छोटी छोटी जो मतलब जो अगले 2 4 6 महीने वाली जो जो गोल्स हैं, उसके लिए आपको एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक मीडियम टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपने सोचा कि अगले 2 3 साल 4 5 साल में मुझे कार खरीदना है, घर खरीदना है, तो ये तो मीडियम टर्म गोल हो गए। लॉन्ग टर्म गोल कि हाँ, से 10 साल या 15 20 साल के बाद, 25 साल के बाद में, आज मैं 30 साल का हूँ, मैं 60 साल में रिटायर होऊंगा। तो रिटायरमेंट के समय में तो मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, मुझे कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे क्या क्या आज से क्या करना है। मैं मान लीजिए कि मैं आज मेरा बेटा 5 साल का है। आपको अगर बेटा 5 साल का है आपको, तो आपको दो चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला कि जब वो 16 या 17 साल का होगा, यानी क्लास 12 में पहुंचेगा, तब आपको एक बड़ा अमाउंट खर्च करना होगा। अगर वो कोई भी एक बड़ा कोर्स करना चाहता है, उसके लिए आपको सेविंग करनी है। अगर आप क्लास जब वो 4 या 5 साल का है, तब से ही आप एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस समय में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही आपको आपके अगर सपोज डॉटर है, सन है, जिसकी जो अभी अगर सन आपका 10 साल का है, आपको लग रहा है कि वो 26 27 साल का होगा, 25 साल का होगा, तो मैं उसका शादी करूंगा। तो 15 साल 16 साल के बाद आपको शादी करनी है। तो लॉन्ग टर्म गोल, हर गोल के हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने होंगे। अ, सबसे पहला तो ये है कि आपको एक क्रिएट बजट बनाना पड़ेगा। बजट में एक 50 30 20 रूल बहुत फेमस है। 50 30 20 रूल कहता है कि आप अपने इनकम का 50% तो अ, आप जो बेसिक नीड्स हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उन पे खर्च कीजिए। 30% अपने कार, ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट, इन सब के लिए वांट्स, यानी ये 30% वो हैं जो आपके चॉइस पे निर्भर है। यानी कि ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 50% तो वैसी चीजें हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटी हैं, वो आपको करनी ही है। और थर्ड है 20% फॉर सेविंग एंड डेवलपमेंट। अब ये रेशियो जो है आप हर व्यक्ति के जो पहले के एसेट्स हैं, पहले के नेटवर्क हैं, उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। फिर एक बजटिंग का एक और रूल है, जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है, मतलब जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, उसके लिए एक पर्पस असाइन करना। मेरे पास मंथ में 50,000 रुपया मेरी सैलरी है, 50,000 आ रही है, तो मैं क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च करूंगा, उस उसको रुपी के हिसाब से पहले ही डिसाइड करना। थर्ड है इन्वेलप सिस्टम। आज सपोज आज आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को 2 3 बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, 2 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, या बहुत जगह रख सकते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि इन्वेलप बनाते थे। ओके ओके, ये वाला इन्वेलप मेरे इस खर्चे के लिए है, क्योंकि उनको सैलरी कैश में मिल जाती थी मान लीजिए, तो उन या फिर उनकी बिजनेस है, डेली कैश आ रहा है, तो वो इन्वेलप बनाते थे। इन्वेलप सिस्टम की इस इन्वेलप में पैसा इस पर्पस के लिए है, इस इन्वेलप में इस पर्पस के लिए। फिर
बिल्डिंग एंड इमरजेंसी फंड। आप 25,000 रुपया भी कमा रहे हो साल मंथ में, या आप 2 लाख रुपया भी कमा रहे हो मंथ में, आपके पास कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि हम लोगों के पास कोविड अचानक आ गया। सोचिए कि कितने लोगों का दुकान बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, कोई बिजनेसमैन है, कोई वहाँ जॉब करता है, कितने लोगों को तो सैलरी भी नहीं मिली। अगर लॉकडाउन के समय में कुछ लोगों को उनकी कंपनी बंद हो गई तो कुछ लोगों को सैलरी मिली, बट कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कितने लोगों को कुछ 6 6 महीने तक 1 रुपया नहीं मिला, कितने लोगों को 20% ऑफ सैलरी मिली। तो इन सब चीजों के कारण आपका जो भी इनकम है, अगर आपकी 20,000 रुपये ही इनकम है, आपको कम से कम 2 से 3 हजार रुपया कुछ भी हो सकता है ना, कि मेरे साथ कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, हाँ, या कुछ मेरे साथ ऐसी घटना घट जाए, मेरे पास अगर एटलीस्ट 4 5 महीने का मेरे पास सेविंग कहीं इन्वेस्टेड है, तो उस 4 5 महीने में मैं फिर अपने आप को रिग्रुप कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर वो दिक्कत आएगी, तो एक इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेज डेब्ट वाइटली। मैंने जैसे कहा था कि हमें जैसे अपने एसेट को एसेस करना है, वैसे ये भी देखना है कि आज के डेट में मेरे लोन्स कितने चल रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज हाई इंटरेस्ट डेब्ट। यानी अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड पे अगर आपने कुछ खरीदा हुआ है जिसका आप ईएमआई पे कर रहे हैं, या सिर्फ मिनिमम पेमेंट करके छोड़ दे रहे हैं, तो वो मत कीजिए। अगर आपको आपके पास लोन्स हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड का ही नॉर्मली सबसे ज़्यादा 24 25% के करीब का इंटरेस्ट रेट होता है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अगर मुझे पे करना है तो मैं जो सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट डेब्ट वाला है उसको पे करूँ। तो ये एक तरीका है अपने लोन्स को क्लियर करने का। सेकंड है डेब्ट स्नोबॉल मेथड। डेब्ट स्नोबॉल मेथड क्या कहता है कि सपोज मेरे 5 लोन हैं। एक 2 लाख रुपए का लोन है, एक 5 लाख रुपए का लोन है, एक 15 लाख रुपए का लोन है, सपोज एक 25 लाख रुपए का मेरा होम लोन है। और तो अलग अलग मान लीजिए मेरा 5 6 लोन है। तो जो छोटे 2 3 लाख, अभी एक मेंटल साइकोलॉजी रहती है कि मेरे 6 ईएमआई चल रहे हैं, 6 लोन चल रहे हैं। हाँ, हो सकता है उसमें से कोई 1 लाख रुपए का ही हो, कोई 5 लाख का। तो डेब्ट स्नोबॉल मेथड कहता है कि जो छोटे वाले हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले, 5 लाख वाले, 1000 वाले, उनको पहले क्लियर कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक साइकोलॉजिकल पहले, अभी आपको लग रहा है कि मेरे पास 6 लोन चल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से 4 लोन छोटे छोटे हैं, उनको आपने अगर क्लियर कर दिया तो आपको एक मेंटल साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज मिलेगा कि नहीं, अब तो मेरे पास सिर्फ 2 ही लोन चल रहा है, भले ही उसका अमाउंट ज्यादा है, बट। थर्ड है डेप्ट एवलांचे मेथड। फोकस ऑन हायर इंटरेस्ट रेट डेट टू सेव मोर ऑन इंटरेस्ट ओवर टाइम। ये भी वही चीज है कि सबसे पहले आपको यही क्लियर कोशिश करनी चाहिए कि वैसे लोन्स को आप फुलफिल करें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि कहीं कहीं जब उनको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है, सपोज आपने पर्सनल लोन 12% पे 15% पे लिया हुआ है, और कभी कोई ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिली, कोई गवर्नमेंट स्कीम है या कहीं पे जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे 6% 7% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है, तो आप वो कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेके हाई इंटरेस्ट वाला लोन पे ऑफ कर दीजिए। मॉनिटर एंड एडजस्ट। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअली हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं, उस हिसाब से सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। बट कभी कभी कुछ डेविएशन आ जाते हैं। बट आपको एक चीज, ये डेविएशन आएगा ही, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये डेविएशन हैबिट ना बने। कभी कभी डेविएशन आ जाए तो कोई बात नहीं। अगर आपको डेविएशन आई तो आपको मॉनिटर एंड एडजस्ट करना है। आपको हर 6 महीने पे देखना है कि क्या मैंने जो 6 महीने पहले प्लान किया था उस हिसाब से सब कुछ चल रहा है ठीक, या मेरी इनकम घटी है, मेरा कोई एक्सपेंस बढ़ गया। तो उस हिसाब से आप अपने गोल्स को रीमॉडल करेंगे, एडजस्ट करेंगे वह उनके, ताकि आपके जो डिफरेंट तीनों गोल थे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल थे, मीडियम टर्म गोल थे, लॉन्ग टर्म गोल थे, वो सब क्लियर हो पाए। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जो भी चीज़ करेंगे उसको डॉक्यूमेंटेड रखिएगा, एक डायरी पे लिख के कहीं ना कहीं। जो अपने गोल्स हैं,
कि हाँ ये वाला मैंने जो लॉन्ग टर्म गोल बनाया है इसमें मैं इतना पैसा जमा कर रहा हूँ, इस फंड में जमा कर रहा हूँ, ये मैं मुझे 20 साल तक नहीं छेड़ना है क्योंकि ये मेरा रिटायरमेंट का फंड है। ये 3 साल के बाद मुझे कार खरीदनी है, उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए मुझे 2 लाख रुपए जमा करना है, तो ये उसके लिए फंड है, उसे उसे मुझे नहीं छेड़ना है। तो इस टाइप से आपको अपने गोल्स को ये करना है और अपने फाइनेंशियल हैबिट को सुधारिए। अवॉइड इम्पल्सिव परचेजेस। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम इसलिए उस चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट हम इसलिए खरीद लेते हैं कि वो अचानक मुझे कम प्राइस पे मिल रहा है। मान लीजिए कि मुझे मेरे पास एक लैपटॉप है, सपोज मेरा लैपटॉप मैंने 2 साल पहले खरीदा था और मुझे लगता है कि ये लैपटॉप अगले 2 साल तक काम अच्छा करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट पे कोई सेल आ गया और मुझे कोई किसी ने कह दिया कि भाई ये 50,000 रुपये वाला लैपटॉप 35,000 में मिल रहा है, खरीद लो। कुछ लोग सिर्फ रेट कम हो गया तो खरीद लेते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या उसकी आपको नीड थी? अगर आपको नीड थी तो ठीक है, अदरवाइज अब वैसे भी तो आपका जो पुराना लैपटॉप है वो अगले 2 साल चलता। तो सिर्फ कोई चीज सस्ता मिल रहा है इसलिए मत खरीद लीजिए उसको। या आप ये सोचिए कि क्या इसकी मुझे जरूरत है, क्या मेरे जो उसका अल्टरनेटिव मैं यूज कर रहा हूँ वो अगले 2-4 साल और मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं। तो अपने पैसे को खर्च करने से थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, क्योंकि आप अगर अपना पैसा बचाते हैं तो वो आपके ही काम आएगा कल के पास। यूज क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली। कितने लोग क्या होता है कि मान लीजिए 50,000 रुपए की उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो वो 50,000 या 40,000 यूज कर लेते हैं और जो मिनिमम बैलेंस है 2,000 पे कर रहे होते हैं। इससे आपका सिविल स्कोर भी इफेक्ट होता है और प्लस आपको पे हाई इंटरेस्ट रेट बर्डन होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर क्रेडिट कार्ड है भी तो आप उतना ही यूज करें जो आप मंथली पे कर सकें। एंड ऑटोमेटेड सेविंग एंड बिल पेमेंट, कंसिस्टेंसी रखिए अपने जो भी पेमेंट्स करते हैं। तो ये बेसिकली इस अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये था कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से चल रहा है उस पे। अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के कैसी करनी चाहिए थी उन पे तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले 20-25-20 मिनट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं हमारे पास, उन पे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं और उन हर जितने जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं उसमें कुछ विशेषताएं हैं और उसकी कुछ कमियां हैं। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके नेचर के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से, आपने आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से आपको कौन सा चूज करना है। या इनमें से बहुत से मान लीजिए मैंने अगले 10 चीजों को बताया तो आपको 4 चीजों में इन्वेस्ट करना है, 3 में इन्वेस्ट करना है। ये रेशियो आपको अपने नीड के हिसाब से ऊपर नीचे करना होगा। सबसे पहले है स्टॉक्स। जैसे कोई भी शेयर्स जिसको कहते हैं, शेयर्स में एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग होती है। शेयर्स क्या है? मान लीजिए कि कोई कंपनी है, रिलायंस है, रिलायंस अपना कंपनी चला रही है, उनको है, मान लीजिए आज के डेट में उनका सेल 100 करोड़ रुपए है। तो मान लीजिए रिलायंस ने एक अपनी कंपनी खोली और उसका सेल 100 करोड़ रुपए है, उसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया रिलायंस ने। बाद में उनको लगा कि अगर मैं इसमें पब्लिक को शेयर इशू करके 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपया और ले लूं पब्लिक से, तो मेरा जो आज 100 करोड़ का सेल है वो 1,000 करोड़ का हो जाएगा। तो वो फिर क्या कहती हैं कि पब्लिक से बोलती हैं कि हाँ हम अपना शेयर्स दे रहे हैं इस कंपनी का, आप चाहें तो शेयर्स खरीद सकते हैं। आप उस शेयर्स को खरीदते हैं। सपोज वो 10 रुपए का शेयर है और उसको उसको उन्होंने कहा कि हम ये 25 रुपए में बेचेंगे। आपने उस कंपनी के शेयर्स को में इन्वेस्ट किया। अब जैसे जैसे उस कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ता जाता है उस शेयर का दाम बढ़ता जाता है और फिर आपने मान लीजिए 25 रुपए में खरीद लिया है, बाद में 2 साल के बाद उसका दाम 50 रुपया हो गया तो आपने 50 रुपए में बेच दिया, तो आपको 50 - 25 हर शेयर के हिसाब से फायदा हो जाता है। तो ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर्स में का जो सबसे प्रोज क्या है, खासियत क्या है? पहला कि आपको हाई पोटेंशियल रिटर्न्स होते हैं। ठीक है। आप एक तरीके से ओनरशिप होती है आपकी कंपनी की, 1 ही% की, 0.1% की ही। बट अगर आपने किसी की कंपनी का एक शेयर भी ले लिया तो आप एक शेयर के मालिक हैं उस कंपनी के।
एक चीज और होता है कि जैसे एक शेयर से दो तरीके से आपको कमाई होती है। पहले तो कमाई हुई कि अगर मान लीजिए आपने किसी को 20 रुपए में कोई शेयर खरीद लिया, 3 साल के बाद उसका दाम 100 रुपया हो गया, तो जो 80 रुपया है वो पर शेयर आपको वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ। और सेकंड है कि हर साल मान लीजिए कि कंपनी अपना हर साल सेल कर रही है, तो सेल कर रही है तो कंपनी को प्रॉफिट भी होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी सोचती है ओके, हमें प्रॉफिट हुआ है, तो जो हमारे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उनको हम सपोज 20% से हम डिविडेंड इस साल दे देते हैं, क्योंकि हमें 25% का फायदा हुआ है, तो हम 20% डिविडेंड दे देते हैं। तो आपने अगर 20 रुपए में या 10 रुपए का कोई शेयर खरीदा था, तो 10 रुपए पे तो वो ये कहती है कि अच्छा इस साल हमने 2 रुपए का डिविडेंड दे दिया। तो आपके पास मान लीजिए 500 शेयर हैं, 500 × 2 आपके 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में हर वो क्वार्टरली भी डिविडेंड आ सकता है, डिफरेंट टाइप से डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो शेयर से दो तरीके की इनकम होती है, एक जो आपको डिविडेंड कंपनी से मिलता है क्वार्टरली, हाफेयरली, ईयरली, कुछ भी। और सेकंड आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, हाई पोटेंशियल रिटर्न। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छी चीज मुझे मेरे ख्याल से स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड होता है। अम, अगर जब से इंडिया में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है 90 के दशक से, तब से 18.6% का एवरेज रिटर्न इंडिया के सेंसेक्स ने दिया है। हो सकता है किसी साल में 10% दिया हो, किसी साल में 30% दिया हो, किसी साल में 25% लॉस दिया हो, बट अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो एवरेज 18% से ऊपर का रिटर्न इंडिया के सेंसेक्स ने दिया है। अगर आप सेविंग एफडी की बात करते हैं तो 5-6% का रिटर्न आज की डेट में मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो 7% मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके लिए आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इन सब में जा सकते हैं। इनकी मैंने अभी तक खासियत बताई, अब इनमें कमियां क्या हैं। हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट वोटेलिटी। जो शेयर्स का प्राइस है वो रेगुलर ऊपर नीचे करता रहता है स्मॉल टर्म्स में। स्मॉल टर्म में मान लीजिए कि आपका छोटा पीरियड है, तो या मान लीजिए आज आपने खरीद लिया, डिमांड और सप्लाई के चलते या उस कंपनी की कोई न्यूज आ गई, उस सब के चलते उस शेयर्स के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। तो वोलेटिलिटी रहती है। आपको इस चीज के लिए माइंड मेकअप पहले से करके रखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड नॉलेज एंड रिसर्च। शेयर्स में आप तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपको उसकी नॉलेज हो। कुछ लोग आपके आजकल काफी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा कि आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, हम आपको फ्री ट्रेडिंग आइडियाज देंगे, ये देंगे, वो देंगे। उन पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। शेयर्स में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपको शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप जो सीएनबीसी आवाज वगैरह न्यूज चैनल्स हैं उनको देखा कीजिए, इनके बारे में पढ़ा कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं अब मुझे एक बेसिक हैंड अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तभी आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। कैन बी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डाउन टर्न्स एंड या मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर्स में इन्वेस्ट आप कभी भी, अगर आपको 6 महीने बाद कोई पैसा चाहिए ना, तो आज आपके पास 1 लाख रुपए है, और 6 महीने के बाद उसकी आपको रिक्वायरमेंट है, उसको कभी भी शेयर मार्केट में मत डालिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। वो मैंने आपको बताया कि 18 साल का 18% का एवरेज रिटर्न है, बट ये भी हो सकता है कि उस एक साल में 20% माइनस चला जाए। अगले एक साल में हो सकता है, अगले 3 साल में फिर वो अगले तो सेकेंड ईयर में 40% प्रॉफिट दे दे, ये वो। तो एवरेज 18-20% फिर से बन जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में वो नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए अगर शॉर्ट टर्म नीड्स हैं तो आप उस पैसे को शॉर्ट शेयर्स में मत इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड होता है। शेयर्स और म्यूचुअल फंड क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सपोज 25 कंपनी है या 50 कंपनी है, से अगर हमें अच्छी नॉलेज है तो हम तो सीधे डायरेक्ट जाके शेयर्स खरीद लेते हैं। अगर हमें अच्छी नॉलेज नहीं है तो हमें फिर म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करना चाहिए। म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी सपोज एक्स म्यूचुअल फंड है, तो इन्होंने क्या किया कि ये मान लीजिए इन्होंने पब्लिक से पैसा लिया, ठीक है, पब्लिक से पैसा लिया, सपोज इन्होंने 5 लाख रुपया ले लिया, और म्यूचुअल फंड उस 5 लाख रुपए में को मान लीजिए 10 अच्छी कंपनी में के शेयर्स में, वो उनके पास एक रिसर्च टीम होती है।
वो लोग रिसर्च करते हैं और उन्हें जो अच्छी 10 कंपनी लगी उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उस 5 लाख लाख में से 5,000 रुपये आपका है, 10,000 किसी और का है। जैसे जैसे वो 5 लाख रुपए का वैल्यू बढ़ता है, मान लीजिए 5 लाख वैल्यू का वैल्यू बढ़ के 1 साल के बाद 6 लाख हो गया, तो आपने अगर 5,000 रुपये का उसका म्यूचुअल फंड लिया हुआ है तो उसका वैल्यू बढ़ के 6,000 रुपये हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड भी स्टॉक के तरह ही सही है, बट ये है कि स्टॉक में आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो वहां पे एक प्रोफेशनल्स हैं जो कि काफी रिसर्च करके बैठे हुए हैं, उनका काम ही ये है। तो वो आपके फंड को इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, ब्लैक रॉक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके पास अपनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। तो आप जो भी एसबीआई, एचडीएफसी, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो आगे बढ़ के एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, ये बहुत बड़ी प्लेयर्स हैं, इनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, मैनेज बाय प्रोफेशनल्स होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। इन्वेस्ट किया कीजिए, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि अगर आप 30 साल के हैं, आपको 60 साल में रिटायर होना है, आप 5,000 रुपये का एक अपना एसआईपी चला दीजिए। अगर 15% का भी रिटर्न, मान मान लीजिए मैंने तो आपको दिखाया कि 18% का आज तक दिया है एवरेज, अगर 15% का भी रिटर्न मार्केट देती है तो आपका 5,000 रुपये का एसआईपी 30 साल में 3.5 करोड़ के करीब उसका वैल्यू हो जाएगा, जबकि आपका जो इन्वेस्टमेंट उस 30 साल में सिर्फ 18 लाख रुपए का होगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए 15 साल के बाद आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है। आज आपका बच्चा जन्म लेता है, आप क्या कीजिए कि एक 5,000 रुपये का म्यूचुअल फंड स्टार्ट करके उसके लिए छोड़ दीजिए। जब वो 17 साल का होगा, आपके पास एक ऐसा फंड होगा कि वो जहां पे भी चाहे वहां पे जाके वो आप 50 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके पढ़ाई के लिए। इसके फायदे हैं तो कॉन्स क्या हैं इनमें, वो हैं कि कमियों में है कि एक्सपेंस रेशियो। अब देखिए, जब म्यूचुअल फंड कंपनी है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है कि वहाँ पे वो उन पे म्यूचुअल फंड के जो एम्प्लॉयज हैं उन लोगों की भी सैलरी जाएगी, तो वहां पे वो लोग कुछ एक्सपेंस आपका मानते हैं। मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपया बढ़ के मान लीजिए कि 3 लाख रुपया हो गया, तो वो जो एयूएम है वो 3 लाख है, तो 3 लाख का सपोज वो कहेंगे कि हाँ ये 3 लाख हो गया, बट उस पर 1% जो है 3,000 रुपया मेरा हम लोगों का खर्चा है। बस ये मान लीजिए, लेकिन मैं तो एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो एक 0.5 to 1%, 1.5% ऐसे वो उनका बेसिकली एक्सपेंस होता है, जो कि उनकी सैलरी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, उनके ऑफिस, उन सब का कॉस्ट के लिए होता है। तो जो आपका रिटर्न मान लीजिए 20% है, अगर वहां पे 1.5% का उनका फंड कॉस्ट है, तो आपका नेट रिटर्न 18.5% होगा। सेकेंड प्रॉब्लम वही है, रिटर्न आर मार्केट डिपेंडेंट। और थर्ड इज नो कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट। जो पहला हम लोगों ने शेयर्स में बात किया था कि मुझे अगर अच्छा नॉलेज है तो मैं रिलायंस में किस का शेयर डायरेक्ट खरीद सकता हूँ, टाटा मोटर का खरीद सकता हूँ, मुझे जिस कंपनी पे भरोसा है मैं उसका शेयर डायरेक्ट कर सकता हूँ। म्यूचुअल फंड में मैं म्यूचुअल फंड कंपनी को ये नहीं कह सकता कि आप मेरा पैसा इस शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, अपने नेचर के अनुसार हमने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है उसमें लॉन्ग टर्म फंड हो सकता है, स्मॉल कैप फंड हो सकता है, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो सकता है, तो हमने जिस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है बस हम वही डिसाइड कर सकते हैं उस कैटेगरी के अंदर कौन सा शेयर वो लेंगे, वो उनके पर डिपेंड करता है। थर्ड है हमारा फिक्स डिपॉजिट, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं या प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं उनको सेफ्टी चाहिए होती है, तो वहाँ पे लो रिस्क है बट गारंटीड रिटर्न है, फिक्स इंटरेस्ट रेट है। ये उनके लिए अच्छा है जिनका जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। इंडिया में आज के डेट में 5 से लेके 9% तक अलग अलग बैंक्स के, जो छोटे बैंक्स हैं वो आपको ज़्यादा रेट ऑफर करते हैं, जो बड़े बैंक्स हैं वो थोड़ा कम ऑफर करते हैं। तो एफडी एक अलग ऑप्शन है। लोअर रिटर्न कंपेयर टू इक्विटीज। इक्विटी में मैंने बोला था कि 18%, 15% तक का रिटर्न आ सकता है, जो कि आपको एफडी में है नहीं। आपके पास लॉक इन पीरियड जो है
एफडी में एक चीज और होता है कि शेयर्स या म्यूचुअल फंड में एक आपको क्या होता है कि ठीक है, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, बट आप चाहें तो आज 10 दिन बाद भी आप बेच सकते हैं। लेकिन कुछ कितने सारे एफडी होते हैं जो बोलते हैं, जो जब आप लेने जाएंगे तो वो कहेगा ये 2 साल की एफडी है, 1 ईयर की एफडी है, अदरवाइज आपको इतनी पेनल्टी लगेगी या इतना चार्ज लगेगा ब्रेक करने का। तो ये कुछ इशूज हैं। इन्फ्लेशन कैन इरोड रियल रिटर्न्स, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर साल 4-5% के हिसाब से महंगाई बढ़ जा रही है। तो अगर हम किसी ऐसे चीज में हमारा पैसा इन्वेस्टेड है जो कि 20% रिटर्न दे रहा है, तो फिर क्या है कि अगर 5% महंगाई बढ़ी भी तो हमारा 15% तो रिटर्न होगा। लेकिन अगर हमने पैसा एफडी में रखा हुआ है जो कि 5-6% का रिटर्न दे रहा है और महंगाई भी 5-6% से बढ़ रही है, तो हमारा रियल सेविंग जो है वो तो 0% हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो आपके रियल रिटर्न्स को इफेक्ट करता है। एफडी के बाद ही एक ऑप्शन है रियल इस्टेट। बहुत लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। टैंजेबल एसेट्स होता है, आज आपने 25 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो आपका बढ़ के 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है। साथ में आपको पर मंथ रेंट भी मिल सकता है। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इंडिया में देखा गया है कि टाइम के साथ ये बढ़ भी सकता है, तो मतलब जो महंगाई के साथ साथ प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है। रिटर्न डिपेंड्स मेनली ऑन लोकेलिटी एंड प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ, ये हर जगह प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं बढ़ता, आपने कहाँ पे खरीदा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये इसके कुछ प्रोज हैं, कॉन्स क्या हैं, इसमें कमियां क्या हैं। रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब शेयर्स और म्यूचुअल फंड, आप शेयर्स आप 2,000 रुपए का भी शेयर चाहें तो आप खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड 500 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने डिसाइड कर लिया है, आपकी सैलरी कम है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 500 का एसआईपी खोलूंगा, तो आप 500 से भी एसआईपी खोल सकते हैं। रियल एस्टेट में आपको एक बड़े फंड की जरूरत होती है। लो लिक्विडिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए आज के डेट में मैंने एक 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली, भगवान न करे आज के डेट में मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, क्या मैं एक दिन में उस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता हूँ। तो जबकि शेयर म्यूचुअल फंड को मैं बेच सकता हूँ। तो हर एसेट्स का, हाँ, अभी तक आपने देखा होगा कि मैं उनकी खासियत भी बता रहा हूँ और उनकी कमी भी बता रहा हूँ। ये आपको एक बैलेंस बनाना है, एक मिक्स लेना है। रेगुलेटरी एंड लीगल चैलेंजेस होते हैं। गोल्ड एंड प्रीसियस मेटल, हम लोगों ने पिछले सालों में देखा है कि गोल्ड बहुत तेजी से, गोल्ड और सिल्वर भागा है। बट मैं यही कहूंगा कि आप अपना पूरा पैसा गोल्ड में मत इन्वेस्ट कीजिए। भले ही गोल्ड तेजी से भाग रहा है, बट इंडिया में क्या वर्ल्ड में अगर पिछले 200-300 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो कभी कभी गोल्ड, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर इक्विटी और म्यूचुअल फंड कभी क्रैश करता है तो उसको सेम लेवल में आने में 2 से 3 साल में वो दोबारा अपने उस लेवल पे वापस आ जाता है। बट गोल्ड का अगर आप पिछले 200 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 25-30 साल तक गोल्ड सेम रेट पे रहा है। या जहां से रिकवर किया है वो पिछले 5 साल 7 साल की बात अलग है, बट उसका जो हिस्ट्री है वो बहुत अनसर्टेन है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, बट एक लिमिटेड पोर्शन ही कीजिए। सेफ हेवन एसेट्स है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, मल्टीपल, हाँ, आजकल फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं और उस ईटीएफ ले सकते हैं, सोवर्जिन बॉन्ड्स ले सकते हैं। 3 टाइप का गोल्ड का आपके पास ऑप्शन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला चीज है फिजिकल, मेरे पास आज 5 लाख रुपए है, मैं गया 5 लाख रुपए का मैंने एक गोल्ड की बिस्किट खरीद ली, गोल्ड का ज्वेलरी खरीद लिया और लाके रख दिया। सेकेंड है ईटीएफ। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं मुझे सेफ्टी इशू है, मैं कहाँ रखूंगा, तो आप ऑनलाइन एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड्स खरीद सकते हैं। जो कि आपने 5 लाख रुपए का आज गोल्ड खरीद लिया, अब जैसे जैसे आपके गोल्ड गोल्ड का मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा उस 5 लाख की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 2 साल के बाद पाँच, जो अगर मान लीजिए आज 50 लाख रुपए की केजी है और मान लीजिए कि आज से 2 साल के बाद वो 80 लाख रुपए केजी हो गया, तो आपका जो 5 लाख का आपने गोल्ड ईटीएफ ऑनलाइन खरीदा था उसकी वैल्यू 5 की 8 हो जाएगी। तो वो एग्जैक्ट गोल्ड को ट्रैक करता है ऑलमोस्ट, बट एक्सचेंज ट्रेडेड फॉर्म में होता है। एक सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभी सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड लाती है। वो कहती है कि आज आपने सपोज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड में, तो 7 साल के बाद, या सपोज 6 साल का लॉक इन है, तो 6 साल के बाद आज अगर 1 लाख का जो भी गोल्ड का रेट है, 6 साल के बाद जो गोल्ड का रेट होगा हम उतना आपको रिटर्न देंगे, प्लस 2.5% सालाना अपने तरफ से हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो वहां दोनों चीज हो जाता है आपको। एक तो गोल्ड का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 50 लाख से बढ़ के 5 करोड़ हो जाएगा, अगर मान लीजिए 6 साल के बाद, तो आपका 1 लाख जो है बढ़ के 10 लाख हो जाएगा, गवर्नमेंट आपको 10 लाख देगी। प्लस हर साल जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था उस पर 2.5% गवर्नमेंट अपने तरफ से इंटरेस्ट भी देती है, तो उसको सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं। 1980 से लेकर 2024, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1980 से लेकर 2024 में अगर गोल्ड का CAGR देखिए तो सिर्फ 9% है। अगर मार्केट शेयर मार्केट का देखिए तो 18% है। तो गोल्ड भले ही हमें बहुत अच्छा पिछले 5-7 साल में लग रहा है, बट जब ये स्टेबल होना होता है तो काफी टाइम लग जाता है इसको रिकवर करने में। आप रेगुलर इनकम नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट गोल्ड बैंड। स्टोरेज का कंसर्न होता है अगर फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो, मार्केट सिक्योरिटी का इशू रहता है। फिर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सरकार भी जो है कभी कभी जो है सरकार को भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि सरकार अपने पैसे खर्च करती है। मान लीजिए सरकार को 1 लाख करोड़ का आय हुआ टैक्सेस से, और सरकार को का खर्चा डिफेंस पे और बहुत सारी नीड पे 1,20,000 करोड़ है, तो सरकार सोचती है चलो 10,000 करोड़ का मैं पब्लिक में बॉन्ड्स बांट देता हूँ। तो पब्लिक को बॉन्ड्स ले लेती है, पब्लिक उस बॉन्ड्स को खरीदती है, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देती है। और मान लीजिए 5 साल का बॉन्ड है, तो 5 साल के बाद आप 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और छठे साल में आपको पूंजी वापस मिल जाएगी। तो ये चीज गवर्नमेंट भी करती है, और कितनी कंपनीज भी हैं, जैसे कंपनीज अपना शेयर इशू करती है वैसे ही कंपनीज अपना बॉन्ड भी इशू करती है। किसी कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो कंपनी अपना बॉन्ड इशू कर देती है, क्योंकि आप चाहें तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो बॉन्ड से आपको रिटर्न मिलता है। फायदा क्या है? स्टेबल एंड फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं, लो रिस्क कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी तो फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ पे तो कंपनी ने आपको जो कमिट कर दिया, अगर कंपनी ने कहा या गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, तो वो आपको इंटरेस्ट देगी, तो आपको रिस्क कम है। डाइवर्सिफिकेशन होता है आपके पोर्टफोलियो में। Normally, government bond interest rate varies from 6.5% to 7.5%, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो 7% से 12% तक इंडिया में। ए रेटेड बॉन्ड्स जो हैं, बी में ये, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ना, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी रेटिंग क्या है। जो सेबी है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट, ये आपके लिए अच्छी भी चीज है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस किए हुए हैं कि आप, कोई कंपनी है वो पब्लिक को बॉन्ड देने से पहले अपनी रेटिंग करवाएगी। फिर वो जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो वो पहले देखती हैं उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, उसके पास क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, और फिर वो उनको रेटिंग देती है। किसी को ट्रिपल ए यानी वो बहुत अच्छा हो गया, किसी को ए, किसी को बी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप, और जो जो जितनी अच्छी ट्रिपल ए है तो वो कम इंटरेस्ट रेट देगी, क्योंकि वो बहुत स्टेबल कंपनी है। जो ए रेटेड है वो आपको 10-11%, 12% तक दे देगी। तो आपको लेकिन BC में नहीं जाना है, ये कोशिश करना है। वो आपको ज्यादा भी ऑफर कर सकते हैं, 14-15% भी ऑफर कर सकते हैं, बट आपको जो जिनका ए रेटेड है उसमें कीजिएगा, तो वो आपको ज्यादा सेफ्टी रहेगी। लोअर रिटर्न, इसका जो प्रॉब्लम है, लोअर रिटर्न देन इक्विटीज, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। PPF है, PPF कोई भी पर्सन खोल सकता है। PPF आप 1,000 रुपये पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सरकार के पास चूंकि ये पैसा जमा होता है, तो सरकार की तरफ से गारंटी रहती है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कितने लोग पेंशन वगैरह के लिए PPF में इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली अभी जो गवर्नमेंट बैंक सेविंग स्कीम है, उसमें 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार चेंज होता रहता है। लॉक इन पीरियड 15 ईयर का है।
कभी कभी उसको गवर्नमेंट अब कम भी करने का सोच रही है। अभी शायद ये मेरा कुछ दिन पहले का प्रेजेंटेशन है, अभी शायद कुछ चेंज आया है, उसको लॉक इन पीरियड को कम भी कर रही है गवर्नमेंट। लोअर लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट सब्जेक्ट टू रिवीजन है, सरकार चेंज करती रहती है। यूलिप, यूलिप इंडिया में सबसे ज्यादा यूज आप देखते होंगे, कितने लोग LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, अलग अलग बैंक्स की पॉलिसी है, जो कि आप देखते होंगे इंडिया में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपको कोशिश करते रहते हैं कि वो आपको कोई ना कोई यूलिप दे। तो यूलिप बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। प्रोज क्या है, टैक्स बेनिफिट मिलता है TC में, मैनेज बाय प्रोफेशनल्स हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन यहाँ पे भी है। एज पर पास्ट रिकॉर्ड यूलिप कैन गिव 12-13% एनुअल रिटर्न इन फ्यूचर। तो यूलिप्स भी जो है, यूलिप क्या करती है, म्यूचुअल फंड और यूलिप में एक डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, यूलिप वाले क्या करते हैं कि वो भी इक्विटी बॉन्ड्स वगैरह में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट उसके साथ वो कुछ इंश्योरेंस कवर भी ऐड कर देते हैं। तो चूंकि वो इंश्योरेंस कवर उसमें ऐड कर देते हैं, तो तो कुछ पैसा आपका उस इंश्योरेंस पॉलिसी के टुवर्ड चला जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, तो 1 लाख आपका म्यूचुअल फंड ही खेल जाएगा। बट अगर आपने यूलिप में इन्वेस्ट किया तो हो सकता है 80,000 का ही आपका इन्वेस्ट हो, 20,000 जो है वो उसके साथ जो एक इंश्योरेंस का कंपोनेंट आपका अटैच्ड है, उसके प्रीमियम में उन्होंने लगाया हो, जो कि इंटरनली वो मैनेज करते हैं। तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपए पे जो रिटर्न होगा वो 15-18% होगा। यूलिप में जो में चूंकि आपका पूरा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ इंश्योरेंस के लिए भी जा रहा है, तो वो रिटर्न ऑब्वियसली कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ 12-13% का रिटर्न है। यूलिप का जो प्रॉब्लम्स है कि लॉक इन पीरियड लंबा होता है, हाई कमीशन होता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, जो म्यूचुअल फंड जो आपको बेच रहा है उसको 0.5% कमीशन मिलता है, यहाँ 5%, 10%, कहीं कहीं तो 25-30% भी मिल जाता है। तो अगर 25-30%, आपको ये भी देखना है कि अगर आपका जिस एजेंट ने अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और किसी एजेंट ने आपका को 10% कमीशन उस इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो अगर 1 लाख रुपए उस इंश्योरेंस कंपनी के पास आया और एजेंट को 10,000 दे दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो उन्होंने अपने पॉकेट से नहीं दिया, उन्होंने 90,000 ही आपका इन्वेस्ट किया। तो ये चीज आपको, तो इसलिए यहाँ पे हाई कमीशन है, मार्केट लिंक्ड है। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है, टैक्स बेनिफिट है, हाई इंटरेस्ट रेट है 8.2%। अब हम लोग 2 से 3 मिनट में इसको क्लोज कर रहे हैं, टाइम बीत रहा है। सुकन्या समृद्धि है, टैक्स बेनिफिट है, हाई इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट बैक्ड है। प्रॉब्लम्स क्या है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको बीच में बहुत ज़्यादा निकाल वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नो अर्ली एक्सेस, ये जैसे कि मैंने बोला। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, लो कॉस्ट डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडेड लाइक स्टॉक एंड सिक्योरिटी, ये ETF है। ये मतलब म्यूचुअल फंड और शेयर्स का ही एक एडवांस वर्जन है। जैसे जैसे आप मार्केट में वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ये आपको देगा। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं, सरकार के द्वारा बैक्ड हैं, 6.5 से 7.5% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। लॉस क्या है, लोअर रिटर्न पोटेंशियल, लिमिटेड लिक्विडिटी इन सम स्कीम्स, लॉकेट वगैरह होता है। एक जो लास्ट अब मैं बताना चाहूंगा, आजकल अगर जिनके पास अच्छा पैसा है, वो चूंकि नई नई कंपनियां एज स्टार्टअप्स आ रही हैं, तो आप चाहें तो स्टार्टअप्स में भी आपके पास सपोज हर साल 20 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो स्टार्टअप्स में भी एज वेंचर कैपिटलिस्ट आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इनोवेशन है, कैन हाई रिटर्न्स ये आपको दे सकती है। एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, कभी कभी लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसको 4-5 साल 10 साल लग सकता है। तो ये VC वगैरह उनके लिए है जिनके पास अच्छा वेल्थ है, वो इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा टाइम भी हो गया है, और जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अभी मैंने बता दी है। जी। Thank you so much, sir, for such an insightful session.
I'm sure our audience has many questions regarding this. So we will now open the floor for questions and Okay, we will take them one by one. sure. जैसे मैं Any questions you can ask to sir. Sir, जैसे पूछ लीजिए। hello sir. जी हेलो। हमने देखा आपने हम पैसे को सेव कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं और एज अ स्टूडेंट मैं कहना चाहती हूँ कि हम कैसे पैसे को इनकम कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट में लाइफ में तो आपके पास एक लिमिटेड स्कोप ही होता है। ठीक है, हाँ देखिए, बट हाँ स्टूडेंट लाइफ में मैं यही कह सकता हूँ कि एक बहुत फेमस कोट है कि अ रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ है कि स्टूडेंट लाइफ में हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना खर्च करना है। पहले अपने सेविंग्स को लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। आपने अगर अपने सेविंग्स को कंट्रोल किया तो आप, और उसके बाद फिर आपके पास, यानी जैसे मैंने बताया ना, जो एस आई पी है 500 रुपीज पर मंथ से खोला जा सकता है। अटल पेंशन योजना है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अगर यंग एज से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपको फ्यूचर में वो धीरे धीरे एक छोटा इन्वेस्टमेंट आपका एक बड़ा हो सकता है। तो आपको कम एज से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़ा एक बैंक अकाउंट जरूर अपना रखिए। और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास पॉकेट मनी आ रही है तो मैं पॉकेट मनी भी का भी एक पार्ट बचा लिया करूँ। वो आपको एक, और धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे आपके पास कैपिटल आएगा आप उसको बढ़ा सकते ठीक है, शुक्रिया। सर आई कैन सी दैट बहुत जन हम लोगों का चैट बॉक्स में क्वेश्चंस किए हैं। हैं। जी मैं देख रहा हूँ। चेरिता बनर्जी, फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी इज इट बेटर टू डू एसआईपी और बाई शेयर्स? देखिए जेता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें यही कहूंगा कि अगर आपका शेयर्स और एसआईपी, आपने दो ऑप्शन पूछा, अगर आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज है, आप शेयर्स कैसे मूव करते हैं, शेयर्स का आपको फंडामेंटल पढ़ना आता हो, टेक्निकल चार्ट पढ़ना आता हो, तब तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर आप बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड के एसआईपी कीजिए। अपने पर्पस बेस्ड, मैंने कहा ना, वो कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो चार चार एसआईपी, पांच एसआईपी चला रहे हैं। कुछ कहते हैं ओके ये 5,000 रुपए का एसआईपी मेरे रिटायरमेंट के लिए है, ये 2,000 रुपए का एसआईपी मेरे इस पर्पस के लिए। तो पर्पस बेस्ड है, आप कर सकते हैं। इफ आई विश टू बाई एनी शेयर देन विच विल बी मोर सिक्योर? देखिए शेयर्स तो क्या है कि आपको पहले आपको उसके रिसर्च करनी आनी चाहिए। हाँ, उसमें भी एक चीज है कि अगर आप बिगिनर हैं तो एक्चुअली मान लीजिए 500 कंपनी है, तो उसमें से निफ्टी में टॉप 50 कंपनी ही रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगली 100 कंपनी है, 200 कंपनी है। तो अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट 50 जो जो कंपनीज है उसी में आपका इन्वेस्टमेंट रहे। ओके सर। महेंद्र तिवारी सर का क्वेश्चन है, सर बीइंग अ मैरिड इंजीनियर इज एन एफडी डन थ्रू एनआरई अकाउंट इज डन टैक्स फ्री, एनी अदर डन थ्रू एनआरई अकाउंट टैक्स फ्री? सर बेसिकली जो अगर आप 183 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो जो आपका सेक्शन 10 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसका जो सबसेक्शन 4 है, उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ों में आपको टैक्स सेविंग है, जिस पे हम लोग और फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन हाँ, मैरिन इंजीनियर्स हैं या नॉन रेजिडेंट हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट पे, इवन कितने सारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे भी जो आपको एक्रू होते हैं उनमें भी टैक्स एग्जेम्पशन है। सेक्शन 10 और
और सबसेक्शन 4, अगर वो एक बार आप सर्च कर लेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा सर कि किस किस पे एनआरई के थ्रू इन्वेस्ट करने पे आपको टैक्स सेविंग हो सकता है। एक डिटेल लिस्ट है वहाँ पे, काफ़ी सारे आपके पास टैक्स सेविंग ऑप्शन अवेलेबल हैं वहाँ। Is there any financial calculator app which also take into inflation? Yes sir, ये गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप हैं। जी। SIP रिया साहब मिनिमम कितने अमाउंट का कर सकते हैं? वह अगेन 500 रुपीज, इंडिया में सबसे अच्छी चीज ये 500 रुपीज से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 20,000 रुपये है और वो 500 का 2 SIP चला रहे हैं, या 1,000 रुपीज का 2 SIP चला रहे हैं। और मैंने ऐसे भी अपने क्लाइंट्स देखे हैं जो कि जिनकी सैलरी 3 साढ़े 3 लाख रुपए है और वो 10-10 हजार रुपए का 10 SIP चला रहे हैं। तो दोनों तरीके के लोग हैं, बट SIP की सबसे अच्छी चीज है कि आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। Anyone else? या गुड आफ्टरनून आशीष जी। मेरा क्वेश्चन है कि अभी लाइक एज ए मेरिनर we are working and status maintaining NRE, and after retirement whatever I have our investment in NRE slot में, after that उसका क्या जो होगा रिटर्न वो किस कैटेगरी में आएगा और क्या इम्प्लीकेशन आ सकता है उसमें? सर देखिए, जब जब तक आप एनआरई थे तो ईयर ऑन ईयर आपका जो इनकम था वो तो टैक्स फ्री ही था, वो इंडिया में टैक्स नहीं हो रहा था। तो अगर उन पैसों को आप इंडिया में लाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उस पैसे को, वो पैसा उस समय में तो टैक्स फ्री ही रहेगा। जब आप फ्यूचर में मान लीजिए कि आज मैं एनआरई मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हो गए और बाद में मैं जब रेजिडेंट बन जाता हूँ तब तो उस पर जो भी मुझे उसके बाद जो रेजिडेंशियल स्टेटस जब मेरा चेंज हो जाएगा तो उसके बाद तो जो भी मैं इन्वेस्ट करूंगा उसका उस साल, क्योंकि जो ये आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है सर, वो टैक्स कैलकुलेशन वो हर साल के रेजिडेंशियल स्टेटस पे होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर साल आपको कहा जाता है कि 180 to 83 डेज वाला मेंटेन करो। तो तो उस साल में आपकी जो जो रहेगी, हाँ ऑब्वियसली जो आपका एक्यूमुलेटेड पैसा है, जो कि आपका पहले टैक्स फ्री था उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, बट उसको जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस साल में आपका, मान लीजिए आज से 10 साल बाद आप रिटायर्ड हुए, आपके पास 5 करोड़ रुपए का वैल्यू है, और आपने मर्चेंट नेवी छोड़ दी तो आप नॉर्मल रेजिडेंट हो गए सर। रेजिडेंट हो गए तो उस समय में आप जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे उस पर इंडियन टैक्स के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लॉकेट। Okay, sir. Thank you so much, sir. Um, थैंक यू। Thank you, sir. Before we move to the closing, I would like to acknowledge our associate partners who have made this event possible. Take Him Solutions, a dynamic organization which offers cybersecurity audit, consultancy, IT solutions, digital marketing, and corporate training in soft skills. We collaborate with institutes and organizations to deliver reliable, growth-focused service tailored to modern industry needs. As today's sponsor, TakeHem Solution is proud to support youth development through accessible learning and career-enriching opportunities. We are grateful to the Lions Club of Kolkata Metro City, a dedicated organization tirelessly serving the community through impactful humanitarian initiatives and social welfare programs. And we are thankful to our United Maritime Association, seafarers, new organization based in Patna, focused on development. We are also thankful to Avalon Academy Damdam that this organization regularly conduct skill development awareness programs on technical and soft skills, collaboration with various organizations, and also organize many workshops, webinars, competitions, etc. So at the end, we want to share our upcoming
first, we are trying to organize a workshop on 6th December on Polish at our institute, Avalon Academy, Damdam. Next, we are planning to conduct a webinar on mental wellness on 20th December and a workshop on grooming on 10th. Uh, we look forward to your presence in our future programs. Wishing you all a wonderful to you, sir. Our speaker, Mr. C. Sir. Thank you so much. Thank you very much to the all the four organizations, Jason, who have invited me, and special thanks to Pankaj sir. Thank you very much. Thanks to all of you, sir.